Hello, good morning everyone. I hope you all are doing very well. Today we are going to start a new topic, which is a poem by William Butler Yeats. The title of the poem is When You Are Old. It is a very important and also a very interesting poem by him. In this poetry, he argues in the favor of true love, or the we can say spiritual love. He said that the spiritual love or the true love is beyond physical appearance or beyond physical connection only. The physical love which fades according to time. On the other hand, the spiritual love in which poet is favoring, the spiritual love which is favored by the poet is beyond time. It will not fade according to time. It will live last long. ओके सो सिंपली क्या कह रहा है, स्पिरिचुअल लव जो है वो अकॉर्डिंग टू टाइम फेड नहीं होता, एंड जो पोइट है वो उसी का फेवर कर रहा है कि स्पिरिचुअल लव बहुत ज़्यादा बेटर है फिजिकल लव से. स्पिरिचुअल लव इज़ अ बॉन्ड बिटवीन सोल्स. इट इज़ नॉट ओनली बिकॉज ऑफ फिजिकल अपीयरेंस. सो दिस इज़ द मेन थीम ऑफ दिस पोइम. He's taking the theme of love in this poem, and he presented how we will regret about the losing of this love. Okay, this is the whole theme of this poem, and now we will start by taking a look on the poet, who is the poet, and later on we will discuss about the poem, and in the last we will describe the poem by line. Okay, so let's start with the poet. Who is the poet? So, as we know, the poet of this poem is W.B. Yeats, William Butler Yeats. Okay, so he was an Irish poet. He was also a dramatist and a prose writer. Okay, uh, he was born in Dublin in 1865. It is a place in Ireland, and he did a lot for the literature of Ireland. उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है आयरलैंड के लिटरेचर के अपलिफ्टमेंट में. ठीक है, इन्होंने जो आयरलैंड का लिटरेचर, जिस टाइम इनका बर्थ हुआ था, आयरलैंड के लिटरेचर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, बट इन्होंने अपनी फोकलोर्स को और जो आयरलैंड के जो कल्चर को है उसको इम्पोर्टेंस देने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क्स लिखे हैं. दैट्स वाई इनको बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन माना जाता है आयरलैंड के लिटरेरी रिवाइवल के लिए. Okay, so because he did a lot for literature, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था इनका लिटरेचर में. दैट्स वाई इनको 1923 में लिटरेचर में नोबल प्राइज़ मिला है. ओके, इन 1923 ही गॉट नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर. ओके, when we see his poems, his poetry, we can see the influence of P.B. Shelley, Spencer, and pre-Raphaelite poets. So these are the poets which influence W.B. Yeats. Whenever we see his poetry, we can see that he is influenced by them. Means इन्होंने जो ये पोइट्स हैं इनके वर्क्स को पढ़ के खुद इंस्पायर हुए हैं कि ये खुद वर्क्स लिखें. दैट्स वाई कहीं ना कहीं इनका इन्फ्लुएंस इसके वर्क में दिखता है. ठीक है, तो इनके अब हम जानते हैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में. इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं द लेक आइजल ऑफ इंसफ्री, द सेकेंड कमी, एंड ईस्टर राइजिंग. दीज थ्री आर ऑल्सो पोइम्स and they are also very important in his career. Okay, later on in his life he fall in love with Morgana. Morgana was a nationalist and an actress, so he start liking him. He proposed him, but she denied his love. So he was so depressed, and he was so broken hearted. Then he start expressing his love in his poetry and in his works. So we can see the influence of Maud Gonye in his works. Okay, so in this poetry also, जो मॉड गोने हैं, जो हार्ट ब्रेक है बिकॉज ऑफ मॉड गोने, उसका इम्पैक्ट हम इस पोइट्री में भी देख सकते हैं. ये पोइट्री उन्होंने मॉड गोने को ही एड्रेस की है.
ठीक है, ये पूरी पोइट्री में हम देखेंगे उन्होंने कैसे मॉड गोने को अपनी पोइट्री में एक्सप्रेस किया है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पोइट्री। ठीक है, ये पोइट्री क्या है? इट इज़ अ पोइट्री ऑफ 12 लाइन, 12 लाइन है इसमें, 3 क्वार्टेन में है, मीन्स 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तीनों पार्ट 4 लाइन्स के हैं। ठीक है, और इसमें राइम स्कीम क्या यूज़ हुई है? इसमें ए बी बी ए, ये राइम स्कीम इसके अंदर यूज़ हुई है। ठीक है, और इसमें जो थीम है, मैंने आपको पहले ही बताया था, इसमें थीम है स्पिरिचुअल लव का। ठीक है, तो इन्होंने लव के दोनों जो भी दोनों फेसेस होते हैं वो प्रेजेंट किए हैं। सम टाइम लव इज़ बिटर, सम टाइम लव इज़ स्वीट, सो दोनों काइंड का लव इन्होंने अपने पोइट्री में प्रेजेंट किया है। तो वो हम लोग जब इसकी रीडिंग करेंगे तो अच्छे से हमें पता चलेगा कि कैसे इन्होंने इसको एक्सप्रेस किया है। सो लेट्स सी ये पब्लिश कब हुई थी और किस चीज़ में, कहाँ पब्लिश हुई है। ये पब्लिश हुई है, सेकंड कलेक्शन था W.B. Yeats का पोइट्री का, जिसका नाम था द रोज़, उसके अंदर ये पब्लिश हुई थी। ओके, और ये पोइट्री जो है ये बेस्ड है ऑन अ सोनेट। सोनेट आई अर्लियर टोल्ड यू, सोनेट क्या होती है? सोनेट होती है अ लिरिकल पोएम ऑफ 14 लाइन, और यू कैन से अ लव पोएम ऑफ 14 लाइन। सो पेरी दी रोंजार्ड की एक सोनेट थी जिससे ये इंस्पायर होके W.B. Yeats ने लिखी है व्हेन यू आर ओल्ड। ठीक है, इट इज ऑल्सो लव पोएम ना, सो देर इज अ कनेक्शन बिटवीन बोथ ऑफ दिस। ओके, सो इन्होंने ये, हमने पहले ही देख लिया किसको एड्रेस की हुई है, मॉड गोने को एड्रेस की हुई है जिनसे वो प्यार करते थे। ठीक है, अभी हम देखते हैं इसमें थीम भी हम लोग पहले डिस्क्राइब कर रखा है, और स्पिरिचुअल रिलेशनशिप हमारे सामने ये पोएम प्रेजेंट करती है। ठीक है, दिस इज द होल थिंग इन दिस पोइट्री। सो लेट्स मूव ऑन the text of this poetry and we will start reading this poetry line by line. ठीक है, so first of all, when you are old, the same thing which is in the title is giving in the first line, and in this he is addressing these lines to Maud Gonne. ठीक है, what the poet is saying, what the narrator is saying, when you are old and grey and full of sleep, he is addressing this line to Maud Gonne, and पोइट क्या कह रहा है मॉड गोने को कि जब आप ओल्ड हो जाओगे और आपके ग्रे बाल हो जाएंगे, मीन्स जैसे ओल्ड होते हैं हमारे हेयर्स का कलर चेंज हो जाता है, एंड फुल ऑफ स्लीप। फुल ऑफ स्लीप का मीनिंग है जब हम लोग ओल्ड हो जाते हैं तो क्या होता है, हम लोग टायर्ड फील करते हैं और थोड़ा स्लीपी फील करते हैं। तो द सेम थिंग इज ही सेइंग इन दिस पोइट लाइन्स, एंड नॉडिंग बाय द फायर टेक डाउन दिस बुक। नॉडिंग मतलब झुके हुए बैठे हैं, बाय द फायर मतलब फायर साइड होती है ना, यूजुअली हमने देखा है फायर साइड, जब सर्दी होती है हम फायर साइड पे बैठ के बुक्स पढ़ रहे हैं या कुछ ऐसा होता है। द सेम इमेजिनरी ही इज़ प्रेजेंटिंग कि वो ओल्ड हो जाएगी और वो फायर साइड पे अकेली बैठी हुई होगी और उसके पास क्या होगी, टेक डाउन दिस बुक मतलब दिस पोइट्री विच ही इज़ राइटिंग राइट नाउ। ये इस पोइट्री की बुक वो लेके बैठेगी और ये पढ़ रही होगी। ठीक है, एंड स्लोली रीड एंड ड्रीम द सॉफ्ट लुक। स्लोली रीड, इस पोइट्री को वो पढ़ेगी, देखेगी इसमें क्या क्या है, एंड ड्रीम ऑफ द सॉफ्ट लुक। व्हाट ही इज सेइंग, जब वो इस पोइट्री को पढ़ेगी तो क्या होगा, वो अपनी जो यंग एज में जो उसकी लाइफ थी उसको वो रिमाइंड करेगी। हाउ सॉफ्ट लुक मतलब उसका जो मतलब एक ग्रेसफुल जो लुक था, एक जो ब्यूटी थी यूथ एज में, उसको वो रिमाइंड करेगी। ठीक है, योर आईज हैड वंस एंड फॉर देयर शेडोज डीप। और क्या बताएंगे, उसकी जो कभी वो बहुत यंग थी, बहुत ब्यूटीफुल थी, उस चीज़ को वो रिमाइंड करेगी। ठीक है, और याद करेगी कि कभी उसकी आंखें भी और उसकी जो भी इमेज थी वो बहुत ही ग्रेसफुल और बहुत ही अच्छी थी, उस चीज़ को वो याद करेगी। सिंपली इसमें ये प्रेजेंट कर रहा है जो नहीं है,
मीन्स वो कह रहा है कि आप सोचो कि आप ओल्ड हो जाओगे और आप कभी अकेले बैठे होगे, वो मीन्स जो फिजिकल लव थे उसके आसपास जो ट्रू लव नहीं था, इस वजह से राइट नाउ वो अलोन है। और वो उस लोनली फीलिंग में इस बुक को पढ़ के, इस पोएम को पढ़ के वो रिमाइंड कर रही है अपने यूथ के डेज को, और किसको, पोइट को। ठीक है, तो इसमें